let's begin the grand finale of Unveiling India Quiz. Unveiling India Quiz is an initiative by DPIIT and Zee Media, a quiz competition covering GI tag products, India's heritage, culture and general knowledge, a quiz with India at its core. Quiz kicked off with online Olympiad conducted across India, including the island states and northeastern states. More than 1,700 schools participated in the online Olympiad. 64 top teams from across the country qualified for state championship rounds. Now, state championship round conducted at Zee Studios brought forth 32 teams who competed in the national championship rounds. Can we have a huge round of applause? Through exceptional competition and by sheer power of their knowledge, 8 teams from national championship rounds qualified for today's grand finale. And today, in the grand finale, we have 8 brilliant teams, and the top 3 teams will be crowned the second runner-up, the first runner-up, and of course, the champion of champions, the winner of Unveiling India Quiz. At this wonderful occasion, it's my absolute honor to invite Mr. Karan Abhishek Singh, CEO of Zee Media Corporation Limited, on the dais. And I want him to kindly come and share a few words with us. And of course, to encourage the kids as well. Honorable dignitaries, esteemed guests, respected educators, dear students, and all our viewers. It is an absolute privilege to stand before you today in this grand finale of the Unveiling India Quiz, an initiative by DPIIT and Zee News that celebrates the essence of India, our heritage, our culture, and our unmatched knowledge. At Zee Media, we believe that news is not just about delivering information. It is about shaping a better, more informed society. Our commitment goes beyond headlines. We actively create platforms that empower different sections of our society. We play a key role in establishing financial literacy. We deliver business summits, and we also do programs that inspire and educate young minds. Unveiling India Quiz is one such initiative designed to encourage school children to learn about India's glorious past and promising future. What makes this initiative even more remarkable is its massive reach. We touch more than 60,000 schools across India, ensuring that students from every corner of the country have the opportunity to participate and learn about our rich heritage. The journey to this grand stage began with an online Olympiad that covered every region of the country, including the island states and the vibrant Northeast. The response was phenomenal. More than 1,700 schools actively participated, proving that the curiosity to learn and explore India's vast heritage is alive and thriving. And today, after weeks of intense competition, through sheer brilliance and determination, we have arrived at this defining moment, the grand finale. The top 8 teams from the national rounds have earned their place here. To all our finalists, congratulations. You are not just competitors, you are the torchbearers of India's knowledge and heritage, and you will play a big role in shaping our future. Win or lose, your journey has been extraordinary, and your passion inspires us all. At Zee Media, we will continue to bring not just news, but meaningful initiatives that make a difference, ones that empower, educate, and inspire students across the country. Let the grand finale begin. Jai Hind. So let's have a huge round of applause for Mr. Karan Abhishek Singh, the CEO of Zee Media Corporation Limited. Thank you so much, sir, for sharing your kind words with us. I would like to invite Ms. Himani Pandey, Additional Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, on the dais, please. Along with her, I would like to invite Mr. Karan Thapar, who is the Director of DPIIT. Both of you, please welcome. May I have the honor of inviting both of you on the dais. I would like to request Mr. Karan Abhishek to please welcome Himani on the dais with a huge round of applause, of course. Thank you so much, ma'am, for taking our time for us. Thank you for being here. And I would like to request Mr. Karan Abhishek to now felicitate
Mr. Karan Thapar with the bouquet that we have for him. Thank you so much, Karan. Thank you. I would request all of you to kindly take your respective seats. Can we have a huge round of applause once again to all our dignitaries? So इससे पहले कि मैं ग्रैंड फिनाले राउंड के रूल्स आपको बताऊं क्विज के, मैं इनवाइट करना चाहूंगी स्टेज पर वन बाय वन उन सारी टीम्स को जिन्होंने आज अपनी शार्पनेस, अपनी नॉलेज, अपनी स्मार्टनेस और अपने टीम वर्क के जरिए आज इस ग्रैंड फिनाले के स्टेज पर अपनी जगह बना ली है. Now the finale has two parts that will bring forth the champion of Unveiling India quiz, Eliminator and Champion of Champions. The 8 finalist teams have been divided into 2 groups of 4 teams, that is Group A and Group B. The top 2 teams from each group from the Eliminator segment will qualify to play the final round with us, that is Champion of Champions. That will be a buzzer round. And let me tell you all, the top scorer, मतलब जो भी टीम सबसे ज्यादा स्कोर करेगी चैंपियन ऑफ चैंपियंस राउंड में, is going to be the winner of Unveiling India quiz. Can we have a huge round of applause on this? And now we will begin with the eliminator segment with Group A. तो मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ ग्रुप ए से टीम ए गीतांजलि सीनियर स्कूल तेलंगाना, ध्रुव हिंडोचा और नंदुरी नंदगोपाल का. टीम बी कैम्ब्रिज कोर्ट जयपुर राजस्थान, साम्यक जैन, शान्वी गुप्ता. टीम सी आर्मी पब्लिक स्कूल जम्मू कैंट, वैभव यादव, प्रियांशु कुमार यादव. एंड टीम डी प्लीज बी रेडी, लिटिल फ्लावर इंग्लिश मीडियम स्कूल केरला, जॉन सेबैन, अफान गफूर. तो हम शुरुआत करने वाले हैं अपने राउंड नंबर 1 के साथ. राउंड नंबर 1 इज ऑल अबाउट इमेजेस, मतलब ये एक पिक्टोरियल राउंड है. देखो और जानो. सामने स्क्रीन पर एक इमेज आएगा, उसके बाद उस इमेज के बेसिस पर आपसे एक सवाल पूछा जाएगा और उस सवाल के आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे. 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा सही जवाब है आपके मुताबिक. टीम ए हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपके साथ पिक्टोरियल यानी कि देखो और जानो राउंड की. देखते हैं पहला तस्वीर आपके लिए स्क्रीन पर क्या है. इस इमेज को आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर लीजिए. Okay, let's see what the question is. The image displays a variety of mango known for its distinct aroma, luscious flavor, and generous pulp. This mango, celebrated as Kari Ishada, is primarily grown in which Indian state? Options हैं A. Manipur, B. Karnataka, C. Tamil Nadu या D. Gujarat. ऑप्शन सी तमिलनाडु. ओके, देखते हैं ऑप्शन सी तमिलनाडु इसका सही जवाब है या नहीं. नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर क्योंकि इसका सही जवाब है बी कर्नाटका. ऑलराइट, हम आगे बढ़ते हैं टीम बी की तरफ. देखते हैं आपके लिए कौन सा इमेज आने वाला है स्क्रीन पर. लुक एट दिस इमेज वेरी क्लोजली. ओके, देखते हैं क्या है सवाल टीम बी के लिए. The image displays Nawara rice, an indigenous variety known for its medicinal qualities and unique appearance. In which Indian state is this rice predominantly cultivated? Options हैं A. Tamil Nadu, B. Karnataka, C. Kerala या D. अरुणाचल प्रदेश. ऑप्शन सी केरला. केरला सही जवाब है या नहीं देख लेते हैं. बिंगो, एकदम सही जवाब दिया आपने. कांग्रेचुलेशंस, वेरी वेल प्लेड. तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अगली टीम की तरफ. टीम सी, आप तैयार हो? तो देखते हैं आपके लिए कौन सा इमेज आ रहा है स्क्रीन पे. ऑलराइट, आपको भी इसे बहुत ध्यान से देखना है कि क्या है ये तस्वीर. देखते हैं क्या सवाल आने वाला है इस तस्वीर के बेसिस पर आपके लिए. The guava shown in the image is known for its vibrant pink interior and unique flavor. It symbolizes the mystique of the Sangam region of Uttar Pradesh. What is the name of this GI tagged guava? Clear with the question? देखते हैं इसके options. Option A, Arka Mridula guava. Option B, Allahabad Surkha guava. Option C, Pant Prabhat guava. Option D, Harija guava. ऑप्शन बी अलाहाबाद सुरखा अमरूद. अलाहाबाद सुरखा गुआवा इन्हें लगता है कि सही जवाब है. देख लेते हैं इज दिस राइट और नॉट. एब्सोल्युटली द राइट आंसर. कांग्रेचुलेशंस. इसी तरह से मैं टीम डी की तरफ अभी बढ़ रही हूं. देखते हैं क्या तस्वीर आपके लिए इंतजार कर रही है स्क्रीन पर. ऑलराइट,
लुक एट दिस इमेज क्लोजली। देखते हैं सवाल क्या आने वाला है स्क्रीन पे। The image showcases vibrant handcrafted masks used in chow dance performances. From which state in India do these masks originate? देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। ए उड़ीसा, बी वेस्ट बंगाल, सी झारखंड या डी बिहार। ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल सही जवाब है या नहीं, देख ले। क्या बात है, वेरी नाइस। इससे पहले कि आगे बढ़े देख लेते हैं कि आप सबके स्कोर कार्ड्स क्या कह रहे हैं अभी। ओके, टीम ए गीतांजलि सीनियर स्कूल 0 पॉइंट्स पर है भी, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे और पॉइंट स्कोर करेंगे। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। टीम बी कैम्ब्रिज को 10 पॉइंट्स, मैनी कांग्रेचुलेशंस। टीम सी आर्मी पब्लिक स्कूल 10 पॉइंट्स वंस अगेन, एक बार जोरदार तालियां। टीम डी लिटिल फ्लावर स्कूल भी 10 पॉइंट्स पर है, कांग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल। अब हम बढ़ेंगे राउंड नंबर 2 की तरफ, which is the rapid fire round that you're going to play in the eliminator segment with us. कि मैं हर टीम से 3-3 सवाल करूंगी। Within a span of 10 seconds you have to answer one question. ठीक है, लेकिन हर सही जवाब तो आपको 10 पॉइंट देगा। अगर आप किसी भी सवाल का जवाब गलत देते हैं तो आपके 5 पॉइंट्स आपके मार्क्स में से काट लिए जाएंगे। तो पहला सवाल रैपिड फायर राउंड के लिए टीम ए का स्क्रीन पर ये रहा। ISRO is a key player in India's space exploration. What is the full form of acronym ISRO? इसका full form क्या है? Options देख लेते हैं। Option A, Indian Scholar Research Organization. Option B, Indian Space Research Organization. Option C, Indian Station Research Organization. या फिर Option D, Indian Space Remote Organization. And your time starts right here. ऑप्शन बी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने जल्दी से बताया ऑप्शन बी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देख लेते हैं इसरो का फुल फॉर्म यही है या नहीं। वेरी वेरी वेल डन, 10 पॉइंट्स एडेड टू योर अकाउंट। अच्छा खेल रहे हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। देखते हैं अगला सवाल। Which type of loom is used to produce वरंगल दरीज? किस तरह का लूम वरंगल दरीज को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए बैकस्ट्रैप लूम, बी फ्रेम लूम, सी जकार्ड लूम या डी सर्कुलर लूम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स राइट हियर। ऑप्शन सी जैकवर्ड लूम। जकार्ड लूम इन्होंने कहा, देख लेते हैं कि सही है या नहीं। ओह, दिस इज द रॉन्ग आंसर, यू गॉट -5। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रेम लूम। देखते हैं अगला सवाल। What makes Sirumalai Hill banana unique compared to other varieties? Options हैं A, exceptional shelf life, B, small fruit size, C, high water content या D, reddish peel. And your time starts right here. जल्दी से बताना पड़ेगा। टाइम इज अप, टाइम इज अप। अब इसके आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। नाउ बढ़ेंगे टीम बी की तरफ। देखते हैं पहला सवाल आपके लिए रैपिड फायर राउंड का क्या आने वाला है। Who among the following was the Prime Minister of the United Kingdom when India gained independence? All right, options देखें। देखते हैं इसके options। A, Lord Mountbatten, B, Winston Churchill, C, Clement Attlee या D, Lord Wavell. And your time starts now. जल्दी, 2 seconds। ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल इन्होंने कहा। आज बहुत वक्त लगा रहे हैं सब जवाब देने में, पर देखते हैं सही है या नहीं। नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि इसका आंसर है ऑप्शन सी क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या आने वाला है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इवॉल्व्ड इन तेलिया रुमाल्स ओवर टाइम? ऑप्शंस हैं A, the use of synthetic dyes, B, the addition of figurative designs, C, the shift from hand woven to machine made patterns या D, inclusion of different print patterns। और आपका वक्त शुरू होता है यहां पे। टाइम इज अप। अब तीसरा, यानी कि आपके लिए आज के रैपिड फायर राउंड का आखिरी सवाल है ये, बहुत ध्यान से खेलिएगा। देखते हैं क्या है वो सवाल। ऊटी वर्की
originates from which state in India? All right, options देख लेते हैं. A तमिलनाडु, B केरला, C कर्नाटका या D आंध्र प्रदेश. और आपका वक्त शुरू होता है अब. ऑप्शन ए तमिलनाडु. ओके, ये इन्होंने थोड़ा जल्दी बता दिया. ऑप्शन ए तमिलनाडु. देखते हैं कि ये सही जवाब है या नहीं. एब्सोल्युटली द राइट आंसर. आपको मिलते हैं इसके 10 पॉइंट्स. कांग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड. आगे बढ़ेंगे टीम सी की तरफ. रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर. आईज ऑन द स्क्रीन राइट हियर. Okay, the Sundarbans mangrove forest is situated in which of the following states of India? ये कहाँ पे स्थित है? Options है A तमिलनाडु, B वेस्ट बंगाल, C गुजरात या D महाराष्ट्र. ऑप्शन नंबर बी वेस्ट बंगाल. बड़े फास्ट हैं ये. इन्होंने कहा B वेस्ट बंगाल. देखते हैं कि ये सही है या नहीं. टाइम से पहले ही बता रहे थे. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. देख लेते हैं अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर क्या है. The national IPR policy aims to reduce the time taken to grant patents. What was the shortest time recorded recently? And the options are A 45 days, B 67 days, C 120 days और D 150 days. और आपका वक्त शुरू होता है यहाँ पे. मैम स्किप करना है. ओके, इनको आंसर नहीं पता है तो ये स्किप करना चाहते हैं. ऑल राइट, टाइम अप हो गया है इसी के साथ. अगले सवाल की तरफ बढ़े. देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन. Which traditional garment is notably made from Salem white silk? कौन सा गारमेंट इससे बनाया जाता है? राइट, देखते हैं इसके ऑप्शंस. A धोती, B गमोसा, C मेखला या D रिंदिया. और आपका वक्त शुरू होता है अब. ऑप्शन ए धोती. ऑप्शन ए धोती. ओके, देख लेते हैं ऑप्शन ए धोती इसका सही जवाब है या नहीं. क्या बात है, वेरी नाइस. ओके, टीम डी तैयार हो? बिल्कुल, शुरू करें रैपिड फायर का पहला सवाल. देखते हैं स्क्रीन पर आपके लिए क्या आ रहा है. ओके, व्हाट डू पुरुलिया चाव मास्क्स टिपिकली डिपिक्ट? ऑप्शंस हैं ए माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बी कॉमन विलेजर्स, सी फॉरेस्ट एनिमल्स या डी नेचर. और आपका वक्त शुरू होता है अब. ऑप्शन ए माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स. इन्होंने कहा ऑप्शन ए माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स. देखते हैं सही है या नहीं. एकदम सही जवाब दिया है. बहुत बहुत मुबारक आपको. नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं. अभी बढ़े, देखते हैं अगला सवाल फॉर द रैपिड फायर राउंड फॉर टीम डी. Who became the first Indian to win a medal in judo at the 2024 Paris Para Olympics? Options हैं A सकीना खातून, B सचिन सिन्हा, C कपिल परमार या D परमजीत कुमार. और आपका वक्त शुरू होता है यहाँ पे. We will pass the question. ओके, इन्होंने कहा कि ये अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं सवाल को. दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े. रैपिड फायर राउंड का आखिरी सवाल फॉर टीम डी. बहुत ध्यान से खेलिएगा. देखते हैं क्या है अगला सवाल आपके लिए. Thanjavur pith works are made using the pith of which plant? Options है A banana plant, B netti plant, C coconut plant या फिर D rosewood plant. And your time starts now. Option B नेती प्लांट. इन्होंने कहा ऑप्शन बी नेती प्लांट. देखते हैं सही है या नहीं. सुपरबली आंसर, वेरी शार्प. कांग्रेचुलेशंस, आपको इसके मिलते हैं 10 पॉइंट्स. तो दिल की धड़कनों को आप लोग थाम लीजिए क्योंकि अभी स्कोर कार्ड आएंगे स्क्रीन पर जिसमें से हम चुनने वाले हैं अपनी 2 बेस्ट टीम्स को जो हमारे साथ जाएंगी चैंपियन ऑफ चैंपियंस राउंड में. कैन वी हैव द स्कोर कार्ड प्लीज? All right, Team A, Gitanjali Senior School, 5 points. Team B, Cambridge Court, 15 points. Team C, Army Public School, 30 points. And Team D, Little Flower School, 30 points once again. So Team C, Army Public School और Team D, Little Flower School, आप दोनों हमारे साथ चल रहे हैं Champion of Champions round में. Congratulations to both of you. Brilliantly played by you.
और अब आपको बिल्कुल इंतजार न कराते हुए मैं इनवाइट करूंगी स्टेज पर ग्रुप बी के उन सभी बच्चों को जिन्होंने अपनी जगह बनाई है आज ग्रैंड फिनाले में। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू ग्रुप बी स्टूडेंट्स। टीम नंबर ए पोदार इंटरनेशनल स्कूल महाराष्ट्र से ओजस जैन और ऋषि कर्माकर। टीम बी राजगिरी पब्लिक स्कूल केरला अर्नब गुप्ता और एबल जेवियर। टीम सी भारतीय विद्या मंदिर वेस्ट बंगाल से अभिरूप रॉय और देबांश चक्रवर्ती। माउंट लिटरा जी स्कूल फरीदकोट पंजाब से भव्या पठेजा और विक्रमजीत पठेजा। शुरुआत करते हैं एलिमिनेटर सेगमेंट की ग्रुप बी के साथ। ऑलराइट, तो मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले इस सेगमेंट में हम आपके साथ राउंड नंबर 1 की शुरुआत करेंगे, विच इज नन अदर देन पिक्टोरियल देखो और जानो राउंड। चलिए शुरुआत करते हैं टीम ए के साथ। पिक्टोरियल यानी कि देखो और जानो राउंड की बड़े ध्यान से देखिएगा। जो पहली तस्वीर आपके लिए आने वाली है स्क्रीन पर। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या सवाल आने वाला है अभी। The GI tag leather craft is known for its embossed designs, glossy finish, and traditional motifs, and is associated with West Bengal. Identify the name of the craft. Options हैं A. Kolkata leather goods, B. Bantala leather, C. Santiniketan leather goods या D. Havra embossed leather. Please lock option C, Shanti Niketan leather goods. ऑप्शन सी शांति निकेतन लेदर गुड्स। देखते हैं कि सही जवाब है या नहीं। बिंगो, एब्सोल्युटली राइट आंसर। पहले सवाल का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। वेरी वेल डन। आगे बढ़ेंगे टीम बी की तरफ। देखते हैं क्या तस्वीर आपके लिए आने वाली है। ऑलराइट, इस तस्वीर को हम श्योर आपने देख लिया होगा ध्यान से। चलिए देखते हैं आपके लिए सवाल कौन सा आने वाला है। Okay, the image shows an intricate traditional art form using red ochre mud and rice paste with motifs like conch shells, swastikas and goddess footprints. Which art form from Uttarakhand does this represent? And the options are A. Pattachitra, B. Aipan, C. Varli या D. Madhubani. Option B, Aipan. इन्होंने कहा ऑप्शन बी आईपान। सही है या नहीं? एकदम सही जवाब दिया आपने। मिलते हैं 10 पॉइंट्स इसके आपको। आगे बढ़ेंगे टीम सी की तरफ। आप लोग को भी ध्यान से देखना है इस तस्वीर को जो आपका इंतजार कर रही है। ऑलराइट, अभी पूछेंगे इसके बेसिस पर आपसे एक सवाल। दिस GI टैग लीची known for its crimson red fruits, thin peel and medium cream colored stone is celebrated for its juicy flesh with an optimal sugar acid balance and a high pulp to seed ratio. Now what is its name? इसका नाम क्या है? Options है A. बम्बैया लीची, B. शाही लीची, C. तेजपुर लीची या D. बेदाना लीची। ऑप्शन सी, तेजपुर लीची। इन्होंने कहा ऑप्शन सी तेजपुर लीची। देखते हैं सही जवाब है या नहीं। ये इसका गलत जवाब है क्योंकि इसका सही जवाब है बी शाही लीची। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं अभी टीम डी के लिए। देखते हैं कौन सी तस्वीर आपके लिए इंतजार कर रही है स्क्रीन पर। ओके, आप दोनों भी इस तस्वीर को बहुत गौर से देख लीजिएगा। Shall we have the question? The image shown is a famous flower of Odisha's Ganjam district that has a GI tag. What is the name of the plant? इस प्लांट का नाम क्या है? Options है A. केवड़ा, B. जैस्मीन, C. सुगंधा या D. गार्डेनिया। ऑप्शन डी, गार्डेनिया। इन्होंने कहा ऑप्शन डी गार्डेनिया। देखते हैं सही जवाब है या नहीं। नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर। इसका सही जवाब है ए. केवड़ा। चलिए, तो पहला राउंड यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब हम देखेंगे स्कोर कार्ड आप सबके क्या कहते हैं। देख ले, लेट्स सी व्हाट योर स्कोर कार्ड सेज। ओके, टीम ए पोदार इंटरनेशनल ऑन 10 पॉइंट्स। कांग्रेचुलेशंस, जोरदार तालियां इनके लिए। टीम बी राजगिरी पब्लिक स्कूल भी 10 पॉइंट्स पर है। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। टीम सी भारतीय विद्या मंदिर 0 पॉइंट्स। एक बार तालियां इनके लिए भी। और टीम डी माउंट लिडरा जी स्कूल 0 पॉइंट्स। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। राउंड नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। राउंड नंबर 2 इज रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैं हर टीम से 3-3 सवाल करने वाली हूं। 3 क्वेश्चंस ईच, स्टार्टिंग विद टीम ए। आपका पहला सवाल स्क्रीन पर ये रहा। Who is the author of the famous Hindi poetry collection Rush Mirathi? Options हैं
ए हरिवंश राय बच्चन, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी महादेवी वर्मा या डी सुमित्र नंदन पंत? एंड योर टाइम स्टार्ट्स राइट हियर। We would like to pass. इन्होंने कहा कि इन्हें जवाब नहीं पता है, तो ये पास करना चाहते हैं, यानी अटेम्प्ट नहीं करना चाहते। देखते हैं अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर क्या है। Which tree wood is primarily used in the blocks for Farrukhabad prints? Options हैं A. Shisham, mango and ebony, B. Cedar and mahogany, C. Pine and oak, D. Bamboo, neem and sandalwood. And your time starts right here. शीशम, मैंगो एंड इबनी। इन्होंने कहा शीशम, मैंगो एंड एबनी, दैट इज ऑप्शन ए। इन्हें लगता है कि सही जवाब है, देखते हैं सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मिलते हैं आपको इसके 10 पॉइंट्स। थर्ड क्वेश्चन फॉर टीम ए इन द रैपिड फायर राउंड, व्हाट इज इट? Firozabad glass artisans are known for using which type of technique to make glass? Options देख ले। Let's see. A. Casting, B. Float glass technique, C. Core forming technique या D. Mouth blown technique? और आपका वक्त शुरू होता है यहाँ पे। कास्टिंग। प्लीज लॉक ऑप्शन बी, फ्लोट ग्लास टेक्निक। इन्होंने कहा ऑप्शन बी, फ्लोट ग्लास टेक्निक। देखते हैं सही है या नहीं। दिस इज द रॉन्ग आंसर बिकॉज इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, माउथ ब्लोन टेक्निक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टीम की तरफ। टीम बी, आर यू रेडी? आपके लिए पहला सवाल स्क्रीन पर ये रहा। Which theme is most commonly depicted in Basoli painting? Options हैं A. Natural landscapes, B. Mughal emperors, C. Hindu deities या D. Animal patterns? And your time starts right here. Option C, Hindu deities. इन्होंने कहा ऑप्शन सी, हिंदू डेटीज। देखते हैं सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब, कमाल कर दिया आपने। 10 पॉइंट्स मिलते हैं इसके आपको। पहले सवाल का सही जवाब दिया, दूसरा सवाल भी बहुत ध्यान से खेलना है। देखते हैं क्या है अगला सवाल आपके लिए। Aranmula Kannadi mirror is a GI tag product of which state? Options हैं A. आंध्र प्रदेश, B. केरला, C. तमिलनाडु या D. कर्नाटका? और आपका वक्त शुरू होता है यहाँ पे। ऑप्शन बी, केरला। इन्होंने जल्दी से बता दिया ऑप्शन बी, केरला, बिना वक्त लेते हुए। देखते हैं ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगेन 10 पॉइंट्स टू यू। देखते हैं क्या है अगला सवाल इनके लिए। What is the primary inspiration behind Nirmal paintings? Options हैं A. Mughal court life, B. Hindu epics, C. Persian poetry या D. Local folk tales? And your time starts here. Option D, local folk tales. Okay, इन्होंने कहा ऑप्शन डी, लोकल फोक टेल्स। इन्हें लगता है सही है। Let us check. Is this right or not? No, this is not the right answer क्योंकि इसका सही जवाब है B, हिंदू एपिक्स। टीम सी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं हम। आप लोग तैयार हो? रेडी? गेट सेट गो। देखते हैं पहला सवाल स्क्रीन पर रैपिड फायर राउंड का फॉर टीम सी। What item is Guled Gur well known for producing? Options है A. Turbans, B. Blouse fabric, C. Bed sheets या D. Table cloths? And your time starts right here. पास। ओके, इन्होंने कहा ये पास करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे दूसरे सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल फॉर द रैपिड फायर राउंड आपके लिए क्या है। Which additional ingredient is combined with Bengal gram flour to create the batter for Bardhaman Mihidana? Options है A. rice powder, B. almond powder, C. whole wheat flour या D. corn flour? और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन ए, राइस पाउडर। इन्होंने जल्दी से बताया ऑप्शन ए, राइस पाउडर। पर देखते हैं इज दिस राइट और नॉट। एकदम सही जवाब दिया आपने। अगले सवाल की तरफ बढ़े। देखते हैं आज का आखिरी सवाल फॉर टीम सी क्या आने वाला है। फॉर व्हाट पर्पस इज बंदा शजर पत्थर मेनली यूज्ड? देखते हैं इसके ऑप्शंस। ए. टू मेक स्कल्पचर, B. to make jewelry, C. to make children's toys या D. to make agricultural tools? और आपका वक्त शुरू होता है यहाँ पे। ऑप्शन बी, टू मेक ज्वेलरी। ऑप्शन बी, टू मेक ज्वेलरी इन्होंने कहा। देखते हैं सही है या नहीं।
Absolutely right answer. पेशेंस के साथ खेला, अच्छा खेला. That's very good. Now we'll move on to team D. आपकी तरफ आ रहे हैं हम रैपिड फायर राउंड के लिए. तैयार हो? Then let's start with it. पहला सवाल रैपिड फायर राउंड का for team D. क्या आ रहा है देख लेते हैं. What is the name of Indian initiative launched in 2022 to promote the use of digital currency? और आपके ऑप्शंस हैं ये. A. भारत पे इनिशिएटिव, B. डिजिटल रूपी, C. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दैट इज UPI, या D. ई रूपी इनिशिएटिव. और आपका वक्त शुरू होता है यहां पे. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI इन्होंने कहा. देखते हैं इज इट राइट और नॉट. नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डिजिटल रूपी. नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या आ रहा है स्क्रीन पर आपके लिए. What is the primary color of the clay used in Bankura Panchmura terracotta craft? Options हैं A. brownish red, B. yellowish brown, C. grey या D. white. और आपका वक्त शुरू होता है यहाँ पे. Skip? Okay, इन्होंने कहा ये skip करना चाहते हैं. नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज का रैपिड फायर राउंड का आखिरी सवाल फॉर टीम डी क्या है. Which ginger variety is popular for satisfying local palates in Assam's Karbi Anglong? Options हैं A. Aizol, B. Mahima, C. Nadia या D. Varada. And your time starts now. ऑप्शन ए आइजॉल. इन्होंने कहा ऑप्शन ए आइजॉल. देखते हैं सही है या नहीं. नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर क्योंकि इसका सही जवाब है सी नाडिया. कोई बात नहीं, आपने अटेम्प्ट किया, ये भी एक अच्छी बात है. एक बार जोरदार तालियां हमारी चारों टीम्स के लिए. तैयार हो स्कोर कार्ड देखने के लिए? चलो देख लेते हैं. ऑल राइट, वाह, तालियां पहले ही बज गई है. टीम ए पोदार इंटरनेशनल 15 पॉइंट्स, टीम बी राजगिरी पब्लिक स्कूल 25 पॉइंट्स पर है, टीम सी भारती विद्या मंदिर 20 पॉइंट्स पर है और टीम डी माउंट लिटराजी स्कूल -10 पर है. एक बार तालियां हो जाओ और मैं आपको बता भी देती हूँ कि टीम बी राजगिरी पब्लिक स्कूल और टीम सी भारती विद्या मंदिर, ये दोनों ही टीम्स हमारे साथ जा रही हमारे फाइनल राउंड चैंपियंस ऑफ चैंपियन में, हमारे अगले राउंड में खेलने के लिए. तो अपनी 8 ग्रैंड फाइनलिस्ट टीम की कड़ी टक्कर के बाद हम फाइनली आ पहुंचे हैं उस घड़ी की तरफ जिसका हमें बेसब्री के साथ इंतजार था. यस, वी आर गोइंग टू प्ले नाउ द चैंपियन ऑफ चैंपियंस राउंड. कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज? एक्साइटमेंट पूरा है और आई एम श्योर कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी भी कर ली है इस राउंड की. मैं आपको बता देती हूँ, इसमें हम आपके साथ खेलेंगे बजर राउंड विद 9 क्वेश्चंस. अगर आपने गलत जवाब दिया तो कहानी में थोड़ा और ट्विस्ट है यहाँ पे क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और आपके 5 पॉइंट्स काट लिए जाएंगे. पहला सवाल बजर राउंड का स्क्रीन पर आप सबके लिए ये रहा. USB is a widely used interface for connecting devices to computers. What does the acronym USB stand for? Clear with the question? Options A. Unique serial bus, B. Universal serial bus, C. Unary serial bus या फिर D. Universal secondary bus. Buzzers. It's team D. ऑप्शन बी यूनिवर्सल सीरियल बस. इन्होंने कहा ऑप्शन बी यूनिवर्सल सीरियल बस. देखते हैं कि ये सही है या नहीं. बिंगो, एकदम सही जवाब दिया आपने. परफेक्टली आंसर्ड बाय यू. 10 पॉइंट्स मिलते हैं आपको इसके. नाउ देखते हैं अगला सवाल क्या है. In which region of Kashmir is Basoli painting mainly practiced? And the options are A. Srinagar, Baramulla and Anantnag, B. Baramulla, Srinagar and Shopian, C. Pulwama, Shopian and Poonch, या D. Kathua, Udhampur and Samba. Buzzers. All right, it's team A. ऑप्शन डी कठुआ उधमपुर एंड सांबा. देख लेते हैं सही है या नहीं. कठुआ, उधमपुर एंड सांबा. Is it the right answer or not? Absolutely the right answer. Very well played. 10 points आपको भी मिलते हैं इसके. Next question on screen for you guys ये रहा. What is a distinguishing feature of Garhwal sarees? Options हैं A. Hand painted designs, B. Zari work throughout the saree, C. 2 joints vertical and horizontal, D. Intricate embroidery. Buzzers. Nobody knows the answer? Well, अब देखते हैं अगला सवाल आप सबके लिए स्क्रीन पर क्या आने वाला है. Okay. Madhubani paintings characterized by bright colors and intricate patterns originate from which region of India? Options हैं A. Bihar, B. Uttar Pradesh,
सी पंजाब या डी वेस्ट बंगाल बजर्स? इट्स टीम ए। ऑप्शन ए बिहार। ऑप्शन ए बिहार, देखते हैं कि ये सही है या नहीं। क्या बात है, एब्सोल्युटली राइट आंसर, लाजवाब, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। 10 पॉइंट्स फिर से मिलते हैं आपको। नाउ शैल वी चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन? ऑल ऑफ यू रेडी? गेट सेट गो। देख लेते हैं स्क्रीन पे क्या सवाल आने वाला है आपके लिए। How many hand-picked shoots are needed to produce 1 kilogram of Darjeeling tea? Options हैं A 5,000 shoots, B 10,000 shoots, C 20,000 shoots या D 50,000 shoots buzzers. All right, it's team C. Option C 20,000 shoots. इन्होंने कहा 20,000 shoots. Is this right or not? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेरी वेल प्लेड। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल आप सबके लिए स्क्रीन पर क्या आने वाला है। The santoor is a traditional musical instrument commonly associated with which region of India? Options: A Rajasthan, B Jammu and Kashmir, C Kerala या D Punjab? Buzzers. It's team C again. ऑप्शन ए राजस्थान। बहुत डरते डरते कहा ऑप्शन ए राजस्थान, देखते हैं सही है या नहीं। गलत जवाब है, सही जवाब है ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल आप सबके लिए स्क्रीन पर क्या आने वाला है। The Makarivilakku festival, celebrated at the Sabarimala temple in honor of Lord Ayyappa, takes place annually in which state of India? And the options are A Telangana, B Andhra Pradesh, C Karnataka या D Kerala? Buzzers. Team C. केरला। ऑप्शन डी केरला। इन्होंने कहा ऑप्शन डी केरला, देखते हैं ये सही है या नहीं। Very well done. What sharp minds are you? Congratulations to you. 10 points added to your account. Now, अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखेंगे सारी टीम्स। देखते हैं क्या सवाल है आपके लिए। The city of Mohenjo-daro, one of the prominent sites of the Indus-Saraswati civilization, is famous for its what? Options हैं A large stone monuments, B great bath and well-planned streets, C pyramids and temples या D wooden houses? Buzzers. It's team B. ऑप्शन बी ग्रेट बाथ एंड वेल प्लान स्ट्रीट्स। इन्होंने कहा ऑप्शन बी ग्रेट बाथ एंड वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स, देखते हैं सही है या नहीं। बिंगो, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 10 पॉइंट्स मिलते हैं आपको इसके लिए। अब बढ़ेंगे आज के हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है अगला सवाल स्क्रीन पर। Which department will be the nodal point for coordinating and overseeing the implementation of future development of IPRs in India? Clear with the question? Options हैं A Department of Science and Technology, B Department for Promotion of Industry and Internal Trade, option C Ministry of Home Affairs या option D Ministry of Culture? Buzzers. It's team A. ऑप्शन नंबर बी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इन्होंने कहा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, बड़े स्टाइल के साथ जवाब दिया, देखते हैं कि ये सही है या नहीं। क्या बात है, 10 पॉइंट मिलते हैं आपको इसके लिए, वेरी वेल डन, वेल प्लेड बाय यू। सो बिफोर वी मूव ऑन टू आवर स्कोर कार्ड, मैं बता देती हूँ आपको कि हमारी जो सेकंड रनर अप पोजीशन के लिए टीम्स हैं उनके बीच में टाई हो गया है। टीम बी लिटिल फ्लावर इंग्लिश मीडियम स्कूल केरला और टीम डी भारतीय विद्या मंदिर वेस्ट बंगाल। तो अपनी सेकंड रनर अप टीम को चुनने के लिए मैं आपके साथ टाई ब्रेकर राउंड खेलूंगी। ये एक बजर राउंड है जिसमें आपको बजर हिट करके क्वेश्चंस के आंसर देने। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, गलत जवाब देने पर आपके 5 पॉइंट्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, यानी कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ऑलराइट, चलिए देखते हैं टाई ब्रेकर के लिए हमारा पहला सवाल। In which district of Kerala is Kantalur, Vattavada, Veluthulli primarily grown? Options हैं A Kannur, B Kollam, C Wayanad, D Idukki? Buzzers. Team B. ऑप्शन डी इडकी। ऑप्शन डी इडुक्की इन्होंने बोला, देखते हैं ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने, 10 points to your account. Next question on screen for the tiebreaker is in which state of India is Balaghat Chinnor rice primarily cultivated? Option A Madhya Pradesh, option B Arunachal Pradesh, option C Assam या option D West Bengal? Buzzers. It's D, team D. ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। इन्होंने कहा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, इन्हें लगता है कि सही जवाब है, देखते हैं कि ये सही है या नहीं।
नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। सो ये डिसाइड हो चुका है कि हमारी सेकंड रनर अप पोजीशन पे टीम बी पहुंच चुकी है। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू टीम बी फॉर बीइंग द सेकंड रनर अप। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। So before we move forward and announce the name of our winners, I would like to take the honor to invite the Honorable Minister of Commerce and Industry, Shri Piyush Goyal ji, who has just joined us through a video conference live. A very warm welcome, sir. बहुत धन्यवाद. Thank you very much. Really nice to see all of you young friends. Believe we're going to choose some of you as winners today, and all the best to all of you. But I must say you've done a very admirable job in reaching the final. And irrespective of who wins, who's runner-up or otherwise, each one of you is a winner, and we are proud of your absolutely fascinating performance until the top. Friends, Unveiling India Quiz Show is a powerful testament to the Honorable Prime Minister's vision, nurturing intellect, celebrating heritage, and empowering leaders of tomorrow. GI tags have a lot of potential even for economic activity. We can leverage various products where we have a GI tag in marketing after creating a brand for them. In fact, I've set a target to my team that we should in the next 10 years target 10,000 GI tags. So India has such a lot of variety and rich culture and heritage. We have to capture all of that under the GI frame. So thank you so much, sir. आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतने अच्छे से हमारे सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो यहाँ पर अभी फाइनल में बच्चे खड़े हैं, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया, उनको इतना अच्छा मैसेज दिया, और सब ऑडियंस भी आई एम श्योर काफ़ी खुश होंगी आपको यहाँ पर देखकर, आपसे बात करके और आपके साथ जुड़कर। थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मे आई प्लीज हैव द ऑनर टू इन्वाइट यू ऑन स्टेज मिस्टर करण थापर। उसी के साथ मैं मिस हिमानी पांडे, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की, उनको भी यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पर। और साथ में मिस्टर संजीव शर्मा, जो बिजनेस हेड हैं ZMCL के। प्लीज वेलकम ऑन द डायस सर। सो सभी बच्चों की निगाहें हम सब पर टिकी हुई हैं इस वक्त कि हम किनके नाम अनाउंस करने वाले हैं। मैम, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली डू द ऑनर्स टू अनाउंस द सेकंड रनर अप फर्स्ट। Little Flower English Medium School, Kerala. Congratulations to John Siban and Afan Ghafoor. Request you to please come forward and receive your award. ₹1,00,000 का चेक जो कि हमारे सेकंड रनर अप को हम देने वाले हैं। मैम, कौन सी है हमारी पहली रनर अप टीम? Congratulations to Team C, Rajagiri Public School, Kerala. Arnab Gupta and Abel Xavier. ₹2,00,000 का चेक इन्हें मिल रहा है, हमारी फर्स्ट रनर अप टीम को। Can we have the names of Unveiling India Quizzes winners? The winners are Army Public School, Jammu Kent, by and Priyanshu Yadav. आइए। Many congratulations to Army Public School, Jammu Kent, वैभव यादव और प्रियांशु यादव। आज ये यहाँ से ट्रॉफी जीत कर जा रहे हैं, मेडल्स जीत कर जा रहे हैं, और साथ में जीत कर जा रहे हैं पूरे ₹3,00,000 का चेक जो इनके लिए यहाँ पर हाजिर है। Ladies and gentlemen, we present to you the winners, the champions of Unveiling India Quiz, an initiative by DPIIT and Z Media.